صحیح بخاری کتاب تفاسیر کا بیان باب آیت کی تفسیر بیشک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسم کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور ان کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ حدیث نمبر 4551 ترجمہ ہم سے علی بن ابی ہاشم نے بیان کیا انہوں نے حشیم سے سنا انہوں نے کہا ہم کو عوام بن حشب نے خبر دی انہیں ابراہیم بن عبدال الرحمن نے اور انہیں عبداللہ بن ابی اوفی نے کہ ایک شخص نے بازار میں سامان بیچتے ہوئے قسم کھائی کہ فلاں شخص اس سامان کا اتنا روپیہ دے رہا تھا حالانکہ کسی نے اتنی قیمت نہیں لگائی تھی بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کسی مسلمان کو وہ دھوکہ دے کر اسے ٹھگ لے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا کہ بیشک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسم کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں آخر آیت تک۔ صحیح بخاری کتاب تفاسیر کا بیان باب آیت کی تفسیر بیشک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسم کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور ان کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ حدیث نمبر 4552 ترجمہ ہم سے نصر بن علی بن نصر نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ دو عورتیں کسی گھر یا حجرہ میں بیٹھ کر موزہ بنایا کرتی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت باہر نکلی اس کے ہاتھ میں موزہ سینے کا سوا چبھو دیا گیا تھا۔ اس نے دوسری عورت پر دعویٰ کیا۔ یہ مقدمہ ابن عباس کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر صرف دعویٰ کی وجہ سے لوگوں کا مطالبہ مان لیا جانے لگے تو بہت سوں کا خون اور مال برباد ہو جائے گا۔ جب گواہ نہیں ہے تو دوسری عورت کو جس پر یہ الزام ہے اللہ سے ڈراؤ اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھو الذین یشترون بعہد اللہ چنانچہ جب لوگوں نے اسے اللہ سے ڈرایا تو اس نے اقرار کر لی۔ ابن عباس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قسم مدعی علیہ پر ہے، اگر وہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہڑپ کرے گا تو اس کو اس وعید کا مصداق قرار دیا جائے گا جو آیت میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کتاب تفاسیر کا بیان باب آیت کی تفسیر آپ کہہ دیں کہ اے کتاب والو ایسے قول کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ حدیث نمبر 4553 ترجمہ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے حشام نے ان سے معمر نے دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ اور مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی کہا ہم کو معمر نے خبر دی ان سے امام زہری نے بیان کیا انہیں عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہا کہ مجھ سے ابن عباس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو سفیان نے منہ در منہ بیان کیا انہوں نے بتلایا کہ جس مدت میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ کے معاہدہ کے مطابق تھی میں سفر تجارت پر شام میں گیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کے پاس پہنچا۔ انہوں نے بیان کیا کہ دہیا الکلبی وہ خط لائے تھے اور عظیم بصری کے حوالے کر دی تھا اور ہرقل کے پاس اسی سے پہنچا تھا۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ ہرقل نے پوچھا کیا ہمارے حدود سلطنت میں اس شخص کے قوم کے بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی ہونے کا دعویدار ہے؟ درباریوں نے بتایا کہ جی ہم موجود ہیں۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ پھر مجھے قریش کے چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلایا گیا۔ ہم ہرقل کے دربار میں داخل ہوئے اور اس کے سامنے ہمیں بٹھا دیا گیا۔ اس نے پوچھا تم لوگوں میں اس شخص سے زیادہ قریبی کون ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ابو سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ میں زیادہ قریب ہوں۔ اب درباریوں نے مجھے بادشاہ کے بالکل قریب بٹھا دیا اور میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا۔ اس کے بعد ترجمان کو بلایا اور اس سے ہرقل نے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ میں اس شخص کے بارے میں تم سے کچھ سوالات کروں گا جو نبی ہونے کا دعویدار ہے، اگر یہ یعنی ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا بیان تھا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی کہیں میرے متعلق جھوٹ بولنا نقل نہ کر دیں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا۔ پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ اپنے نسب میں کیسے ہیں؟ ابو سفیان نے بتلایا کہ ان کا نسب ہم میں بہت ہی عزت والا ہے۔ اس نے پوچھا کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ بیان کیا کہ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھا تم نے دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ پوچھا ان کی پیروی معزز لوگ زیادہ کرتے ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ زیادہ ہیں۔ اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یا کمی؟ میں نے کہا کہ نہیں بلکہ زیادتی ہوتی رہتی ہے۔
पूछा कभी ऐसा भी कोई वाक़या पेश आया है कि कोई शख्स उनके दीन को कबूल करने के बाद फिर उनसे बदगुमान होकर उनसे फिर गया हो? मैंने कहा ऐसा भी कभी नहीं हुआ। इसने पूछा तुमने कभी उनसे जंग भी की है? मैंने कहा कि हम। इसने पूछा तुम्हारी उनके साथ जंग का क्या नतीजा रहा? मैंने कहा कि हमारी जंग की मिसाल एक डॉल की है कि कभी उनके हाथ में और कभी हमारे हाथ में। इसने पूछा कभी इन्होंने तुम्हारे साथ कोई धोखा भी किया? मैंने कहा कि अब तक तो नहीं किया, लेकिन आजकल भी हमारा उनसे एक मुआहदा चल रहा है, नहीं कहा जा सकता कि उसमें इनका तर्ज अमल किया रहेगा। अबू सुफियान ने बयान किया कि अल्लाह की कसम, इस जुमला के सिवा और कोई बात में इस पूरी गुफ्तगू में अपनी तरफ से नहीं मिला सका। फिर इसने पूछा उससे पहले भी ये दावा तुम्हारे यहाँ किसी ने किया था? मैंने कहा कि नहीं। इसके बाद हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा इससे कहो कि मैंने तुमसे नबी के नसब के बारे में पूछा तो तुमने बताया कि वो तुम लोगों में बाइज्जत और ऊंचे नसब के समझे जाते हैं। अनबिया का भी यही हाल है। उनकी बासत हमेशा कौम के साहब हसब व नसब ख़ानदान में होती है। और मैंने तुमसे पूछा था कि क्या कोई उनके बाप दादों में बादशाह गुजरा है, तो तुमने इसका इनकार किया। मैं उससे इस फैसला पर पहुंचा कि अगर उनके बाप दादों में कोई बादशाह गुजरा होता तो मुमकिन था कि वो अपनी ख़ानदानी सल्तनत को इस तरह वापस लेना चाहते हूँ। और मैंने तुमसे उनकी इत्तिबा करने वालों के मुतालिक पूछा कि आया वो कौम के कमज़ोर लोग हैं या अशराफत, तो तुमने बताया कि कमज़ोर लोग उनकी पैरवी करने वालों में ज़्यादा हैं। यही तबका हमेशा से अनबिया की इत्तिबा करता रहा है। और मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुमने दावा नबुवत से पहले उन पर झूठ का कभी शुबह किया था, तो तुमने इसका भी इनकार किया। मैंने इससे ये समझा कि जिस शख्स ने लोगों के मुआमला में कभी झूठ ना बोला हो, वो अल्लाह के मामले में किस तरह झूठ बोल देगा। और मैंने तुमसे पूछा था कि उनके दीन को कबूल करने के बाद फिर उनसे बदगुमान होकर कोई शख्स उनके दीन से कभी फर्रा भी है, तो तुमने इसका भी इनकार किया। ईमान का यही असर होता है जब वो दिल की गहराइयों में उतर जाए। मैंने तुमसे पूछा था कि उनके मानने वालों की तादाद बढ़ती रहती है या कम होती है, तो तुमने बताया कि उनमें इजाफा ही होता है। ईमान का यही मामला है, यहाँ तक कि वो कमाल को पहुँच जाए। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुमने कभी उनसे जंग भी की है, तो तुमने बताया कि जंग की है और तुम्हारे दरमियान लड़ाई का नतीजा ऐसा रहा है कि कभी तुम्हारे हक़ में और कभी उनके हक़ में। अनबिया का भी यही मामला है, इन्हीं आजमाइश में डाला जाता है और आखिर अंजाम इन्हीं के हक़ में होता है। और मैंने तुमसे पूछा था कि इसने तुम्हारे साथ कभी खिलाफ अहद भी मामला किया है, तो तुमने इससे भी इनकार किया। अनबिया कभी अहद के खिलाफ नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हारे यहाँ इस तरह का दावा पहले भी किसी ने किया था, तो तुमने कहा कि पहले किसी ने इस तरह का दावा नहीं किया। मैं उससे इस फैसले पर पहुंचा कि अगर किसी ने तुम्हारे यहाँ उससे पहले इस तरह का दावा किया होता तो ये कहा जा सकता था कि ये भी उसी की नकल कर रहे हैं। बयान किया कि फिर हरकल ने पूछा वो तुम्हें किन चीज़ों का हुक्म देते हैं? मैंने कहा नमाज, ज़कात, सिला रहमी और पाकदामनी का। आखिर उसने कहा कि जो कुछ तुमने बताया है अगर वो सही है तो यकीनन वो नबी हैं। इसका इल्म तो मुझे भी था कि उनकी नबुवत का ज़माना करीब है, लेकिन ये ख्याल ना था कि वो तुम्हारी कौम में होंगे। अगर मुझे उन तक पहुंच सकने का यकीन होता तो मैं ज़रूर उनसे मुलाकात करता, और अगर मैं उनकी खिदमत में होता तो उनके कदमों को धोता, और उनकी हुकूमत मेरे इन 2 कदमों तक पहुँच कर रहेगी। अबू सुफियान ने बयान किया कि फिर इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मंगवाया और उसे पढ़ा। इसमें ये लिखा हुआ था, अल्लाह रहमान रहीम के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अजीम रूम हरकल की तरफ सलामती हो इस पर जो हिदायत की इत्तिबा करे। अमाबद, मैं तुम्हें इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। इस्लाम लाओ तो सलामती पाओगे, और इस्लाम लाओ तो अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा। लेकिन तुमने अगर मुंह मोड़ा तो तुम्हारी रियाया के कफर का बार भी सब तुम पर होगा। और रे किताब वालों, एक ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हम में और तुम में बराबर है, वो ये कि हम सिवाय अल्लाह के और किसी की इबादत ना करें। अल्लाह ताला के फरमान शहदु बाना मसलमुन तक जब हरकल ख़त पढ़ चुका तो दरबार में बड़ा शोर बरपा हो गया, और फिर हमें दरबार से बाहर कर दी गया। बाहर आकर मैंने अपने साथियों से कहा कि इब्न नबी कबरशा का मामला तो अब इस हद तक पहुंच चुका है कि मुल्क बनी अलासिफर हरकल भी उनसे डरने लगा। इस वाक़या के बाद मुझे यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आकर रहेंगे, और आखिर अल्लाह ताला ने इस्लाम की रोशनी मेरे दिल में भी डाल ही दी। ज़हरी ने कहा कि फिर हरकल ने रूम के सरदारों को बुला कर एक ख़ास कमरे में जमा किया। फिर उनसे कहा, ए रोमियो,
کیا تم ہمیشہ کے لیے اپنی فلاح اور بھلائی چاہتے ہو اور یہ کہ تمہارا ملک تمہارے ہی ہاتھ میں رہے؟ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی وہ سب وحشی جانوروں کی طرح دروازے کی طرف بھاگے، دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ پھر ہرقل نے سب کو اپنے پاس بلایا کہ انہیں میرے پاس لاؤ اور ان سے کہا کہ میں نے تو تمہیں آزمایا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو، اب میں نے اس چیز کا مشاہدہ کر لی جو مجھے پسند تھی۔ چنانچہ سب درباریوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر۔ اے مسلمانوں، جب تک اللہ کی راہ میں تم اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو گے، نیکی کو نہ پہنچ سکو گے۔ آخر آیت بعلیم تک۔ حدیث نمبر 4554۔ ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے انس بن مالک سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ میں ابو طلحہ کے پاس انصار میں سب سے زیادہ کھجوروں کے درخت تھے اور بیرہا کا باغ اپنی تمام جائیداد میں انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جاتے اور اس کے میٹھے اور عمدہ پانی کو پیتے۔ پھر جب آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی عزیز ترین چیزوں کو نہ خرچ کرو گے، نیکی کے مرتبہ کو نہ پہنچ سکو گے، نازل ہوئی تو ابو طلحہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تم اپنی عزیز چیزوں کو خرچ نہ کرو گے، نیکی کے مرتبہ کو نہ پہنچ سکو گے، اور میرا سب سے زیادہ عزیز مال بیرہا ہے اور یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، اللہ ہی سے میں اس کے ثواب و اجر کی توقع رکھتا ہوں، پس یا رسول اللہ، جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب یہ فانی ہی دولت تھی، یہ فانی ہی دولت تھی۔ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ میں نے سن لیا اور میرا خیال ہے کہ تم اپنے عزیز و اقربا کو اسے دے دو۔ ابو طلحہ نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا یا رسول اللہ۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور اپنے ناتا والوں میں بانٹ دیا۔ عبداللہ بن یوسف اور روح بن عبادہ نے ذلک مال رائی ربا سے بیان کیا ہے، یعنی یہ مال بہت نفع دینے والا ہے۔ مجھ سے یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے امام مالک کے سامنے مال رائی ربا سے پڑھا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر۔ اے مسلمانوں، جب تک اللہ کی راہ میں تم اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو گے، نیکی کو نہ پہنچ سکو گے۔ آخر آیت بعلیم تک۔ حدیث نمبر 4555۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے انصاری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے سمامہ نے اور ان سے انس نے بیان کیا کہ پھر ابو طلحہ نے وہ باغ حسان اور ربی کو دے دیا تھا۔ میں ان دونوں سے ان کا زیادہ قریبی تھا لیکن مجھے نہیں دیا۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر۔ تو آپ کہہ دیں کہ توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ حدیث نمبر 4556۔ ترجمہ۔ مجھ سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو زمرہ نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلہ کے ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اگر تم میں سے کوئی زنا کرے تو تم اس کو کیا سزا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا منہ کالا کر کے اسے مارتے پیٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا توریت میں رجم کا حکم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے توریت میں رجم کا حکم نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن سلام بولے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، توریت لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ جب توریت لائی گئی تو ان کے ایک بہت بڑے مدرس نے جو انہیں توریت کا درس دیا کرتا تھا، آیت رجم پر اپنی ہتھیلی رکھ لی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا اور آیت رجم نہیں پڑھتا تھا۔ عبداللہ بن سلام نے اس کے ہاتھ کو آیت رجم سے ہٹا دیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جب یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ آیت رجم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان دونوں کو مسجد نبوی کے قریب ہی جہاں جنازے لا کر رکھے جاتے تھے رجم کر دی گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کا ساتھی عورت کو پتھر سے بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب تفاسیر کا بیان، باب آیت کی تفسیر۔ تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو۔ حدیث نمبر 4557۔ ترجمہ۔
हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा उनसे सुफियान ने, उनसे मैसरा ने, उनसे अबू हाज़म ने और उनसे अबू हरीरा ने आयत कुंतम खैर आमा आखरजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए सब लोगों से बेहतर हो, और कहा उनको गर्दनों में जंजीरें डालकर लड़ाई में गिरफ्तार करके लाते हो, फिर वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। जब तुम में से दो जमातें इसका ख्याल कर बैठी थीं कि वो बुज़दिल होकर हिम्मत हार बैठीं। हदीस नंबर 4558। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा इमरू बिन दीनार ने कहा, इन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से सुना, इन्होंने बयान किया कि हमारे ही बारे में ये आयत नाज़ल हुई थी, जब हमसे दो जमातें इसका ख्याल कर बैठी थीं कि हिम्मत हार दें, दिरनहाली का अल्लाह दोनों का मददगार था। सुफियान ने बयान किया कि हम दो जमातें बनो हारसा और बनो सलमा थे। हालांकि इस आयत में हमारे बौद्धेपन का जिक्र है, मगर हमको ये पसंद नहीं कि ये आयत ना उतरती, क्योंकि इसमें ये मज़कूर है कि अल्लाह उन दोनों गिरोहों का मददगार सरपरस्त है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। आपको इस अमर में कोई दखल नहीं कि ये हिदायत क्यों नहीं कबूल करते, अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत मिलती है। हदीस नंबर 4559। तर्जुमा। हमसे हिब्बान बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा मुझसे सालिम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन उम ने बयान किया, और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फजर की दूसरी रकत के रुकू से सर उठाकर ये बद्दुआ की, ए अल्लाह फलन फलन और फलन काफिर पर लानत कर। ये बद्दुआ आपने सिमल्लाह लमन हमदा और रबना वलक अलहमद के बाद की थी। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, लैसलक मन अलामर शे, आपको इसमें कोई दखल नहीं। आखिर आयत फ़ानाम ज़ालमून तक। इस रिवायत को इसहाक़ बिन राशिद ने ज़हरी से नकल किया है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। आपको इस अमर में कोई दखल नहीं कि ये हिदायत क्यों नहीं कबूल करते, अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत मिलती है। हदीस नंबर 4560। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसैब और अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी पर बद्दुआ करना चाहते या किसी के लिए दुआ करना चाहते तो रुकू के बाद करते सिमल्लाह लमन हमदा अल्लाहुम रब्ना लक अलहमद के बाद। बाज़ औक़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी की, ए अल्लाह वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हश्शाम और रयाश बिन अबी रबिया को निजात दे, ए अल्लाह मुज़र वालों को सख्ती के साथ पकड़ ले और उनमें ऐसे कहत साली ला जैसी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से ये दुआ करते और आप नमाज फजर की बाज़ रकत में ये दुआ करते, ए अल्लाह फलन और फलन को अपनी रहमत से दूर कर दे। अरब के चंद खास कबाइल के हक़ में आप ये बद्दुआ करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आयत नाज़ल की, लैसलक मन अलामर शे, कि आपको इस अमर में कोई दखल नहीं। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और रसूल तुमको पुकारते थे तुम्हारे पीछे से। हदीस नंबर 4561। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे ज़हीर ने बयान किया, उनसे अब्वा सहाक़ ने बयान किया, कहा कि मैंने बरा बिन आज़ब से सुना, इन्होंने बयान किया कि उहुद की लड़ाई में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ों के पैदल दस्ते पर अब्दुल्लाह बिन जबीर को अफसर मुकर्रर किया था, फिर बहुत से मुसलमानों ने पीठ फेर ली। आयत फ़िज़ा कज़ यदूहम अल रसूल फ़ी आखिरहम, और रसूल तुमको पुकार रहे थे तुम्हारे पीछे से। मैं उसी की तरफ इशारा है। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 सहाबीयों के सिवा और कोई मौजूद ना था। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब हदीस नंबर 4562। तर्जुमा। बाब आयत की तफसीर। जिन लोगों ने अल्लाह और इसके रसूल की दावत को कबूल कर ली बाद उसके कि इन्हीं ज़ख्म पहुँच चुका था, उनमें से जो नेक और मुत्तक़ीन के लिए बहुत बड़ा सवाब है। क़ुरा यानी अजरा ज़ख्म। इस्तजाबू यानी अजाबू, इन्होंने कबूल किया। यस्तजीब यजीब, वो कबूल करते हैं। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। मुसलमानों से कहा गया कि बेशक लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बहुत सामान जंग जुमा किया है, बस उनसे डरो। तो मुसलमानों ने जवाब में हस्बना अल्लाह व निअमल वकील कहा। हदीस नंबर 4563। तर्जुमा।
हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये कहा कि हमसे अबू बकर शोबा बिन अयाशा ने बयान किया, उनसे अबू सीन उस्मान बिन आसिम ने और उनसे अबुलसा ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि कलिमा हस्बना अल्लाह व निअमल वकील इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था इस वक्त जब उनको आग में डाला गया था, और यही कलिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब लोगों ने मुसलमानों को डराने के लिए कहा था कि लोगों यानी कुरैश ने तुम्हारे खिलाफ बड़ा सामान जंग इकट्ठा कर रखा है, उनसे डरो। लेकिन इस बात ने इन मुसलमानों का जोश ईमान और बढ़ा दिया, और ये मुसलमान बोले कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। मुसलमानों से कहा गया कि बेशक लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बहुत सामान जंग जुमा किया है, बस उनसे डरो। तो मुसलमानों ने जवाब में हस्बना अल्लाह व निअमल वकील कहा। हदीस नंबर 4564। तर्जुमा हमसे मालिक बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे इसराइल ने बयान किया, उनसे अबू सीन ने, उनसे अबुलसा ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आखिरी कलिमा जो आपकी ज़बान मुबारक से निकला हसबी अल्लाह व निअमल वकील था, यानी मेरी मदद के लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। और जो लोग के इस माल में बखल करते रहते हैं जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दे रखा है, वो हरगिज़ ये ना समझें कि ये माल उनके हक़ में अच्छा है, नहीं बल्कि उनके हक़ में बहुत बुरा है। यकीनन क़ियामत के दिन इन्हें इसका तौक़ बनाकर पहनाया जाएगा जिसमें इन्होंने बखल किया था, और आसमानों और ज़मीन का अल्लाह ही मालिक है, और जो तुम करते हो अल्लाह इससे ख़बरदार है। हदीस नंबर 4565। तर्जुमा मुझसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, इन्होंने अबुनज़िर हाशिम बिन कासिम से सुना, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबवसाला ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और फिर इसने उसकी ज़कात नहीं अदा की तो आखिरत में इसका माल निहायत जहरीले सांप बनकर जिसकी आँखों के ऊपर 2 नुक्ते होंगे, इसकी गर्दन में तोक की तरह पहना दिया जाएगा। फिर वो सांप इसके दोनों जबड़ों को पकड़कर कहेगा कि मैं ही तेरा माल हूँ, मैं ही तेरा ख़जाना हूँ। फिर आपने इस आयत की तिलावत वला यहसबन अज़ीन यबख़लून बमा आताहम अल्लाह मन फ़ज़िला की, और जो लोग के इस माल में बख़ल करते हैं जो अल्लाह ने इन्हें अपने फ़ज़ल से दे रखा है, वो ये ना समझें कि ये माल उनके हक़ में बेहतर है। आखिर तक। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। और यकीनन तुम लोग बहुत सी दिल दिखाने वाली बातें इनसे सुनोगे जिन्हें तुमसे पहले किताब मिल चुकी है, और इनसे भी सुनोगे जो मशरिक हैं। हदीस नंबर 4566। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्हीं रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी और इन्हीं उसामा बिन ज़ैद ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गधे की पुश्त पर फदक की बनी हुई एक मोटी चादर रखने के बाद सवार हुए और उसामा बिन ज़ैद को अपने पीछे बिठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो हारिस बिन खज़रज में साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह की मिजाज परसी के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। ये जंग बदर से पहले का वाक़या है। रास्ता में एक मजलिस से आप गुजरे जिसमें अब्दुल्लाह बिन अबी इब्न सलूल मुनाफिक भी मौजूद था। ये अब्दुल्लाह बिन अबी के ज़ाहिरी इस्लाम लाने से भी पहले का किस्सा है। मजलिस में मुसलमान और मुशरिकीन यानी बुत परस्त और यहूदी सभी तरह के लोग थे, इन्हीं में अब्दुल्लाह बिन रवाहा भी थे। सवारी की टापों से गर्द उड़ी और मजलिस वालों पर पड़ी तो अब्दुल्लाह बिन अबी ने चादर से अपनी नाक बंद कर ली और बतौर तक़रीर कहने लगा कि हम पर गर्द ना आओ। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीब पहुंच गए और इन्हीं सलाम किया। फिर आप सवारी से उतर गए और मजलिस वालों को अल्लाह की तरफ बुलाया और कुरान की आयतें पढ़कर सुनाए। इस पर अब्दुल्लाह बिन अबी इब्न सलूल कहने लगा, जो कलाम आपने पढ़कर सुनाया है उससे उम्दा कोई कलाम नहीं हो सकता। अगरचे ये कलाम बहुत अच्छा, फिर भी हमारी मजलिसों में आकर आप हमें तकलीफ़ ना दिया करें, अपने घर बैठें, अगर कोई आपके पास जाए तो उसे अपनी बातें सुनाया करें। यह सुनकर अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने कहा, ज़रूर या रसूल अल्लाह, आप हमारी मजलिसों में तशरीफ़ लाया करें, हम उसी को पसंद करते हैं। इसके बाद मुसलमान, मुशरिकीन और यहूदी आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे और करीब था कि फसाद और लड़ाई तक की नौबत पहुंच जाती, लेकिन आपने इन्हें खामोश और ठंडा कर दी और आखिर सब लोग खामोश हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार होकर वहां से चले आए और साद बिन इबादा के यहाँ तशरीफ़ ले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन इबादा से भी इसका जिक्र किया कि साद, तुमने नहीं सुना अबू हबाब, आपकी मुराद अब्दुल्लाह बिन अबी इब्न सलूल से थी, क्या कह रहा था? इसने इस तरह की बातें की हैं। साद बिन इबादा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
आप इसे मुआफ़ फरमा दें और इससे दरगुज़र कर दें। इस ज़ात की कसम जिसने आप पर किताब नाज़ल की है, अल्लाह ने आपके ज़रिया वो हक़ भेजा है जो उसने आप पर नाज़ल किया है। इस शहर मदीना के लोग पहले इस पर मुत्तफ़िक़ हो चुके थे कि इस अब्दुल्लाह बिन नबी को ताज पहना दें और शाही अमामा इसके सर पर बांध दें, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इस हक़ के ज़रिया जो आपको उसने अता किया है इस बातिल को रोक दिया तो अब वो चुड़ गया है और इस वजह से वो मुआमला उसने आपके साथ किया जो आपने मुलाहज़ा फरमाया है, आपने इसे मुआफ़ कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मुशरिकीन और अहल किताब से दरगुज़र किया करते थे और उनकी अज़ियतों पर सब्र किया करते थे। उसी के बारे में ये आयत नाज़ल हुई और यकीनन तुम बहुत सी दिल आज़ारी की बातें इनसे भी सुनोगे जिन्हें तुमसे पहले किताब मिल चुकी है और इनसे भी जो मशरिक हैं, और अगर तुम सब्र करो और तक़वा इख्तियार करो तो ये बड़े अज़्म व हौसला की बात है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत से अहल किताब तो दिल ही से चाहते हैं कि तुम्हें ईमान ले आने के बाद फिर से काफिर बना लीं, हसद की राह से जो उनके दिल में है। आखिर आयत तक। जैसा कि अल्लाह ताला का हुक्म था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किफ़ार को मुआफ़ कर दी करते थे। आखिर अल्लाह ताला ने आपको उनके साथ जंग की इजाज़त दे दी और जब आपने ग़ज़वा बदर किया तो अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक क़ुरैश के काफिर सरदार इसमें मारे गए। तो अब्दुल्लाह बिन अबी इब्न सलूल और इसके दूसरे मशरिक और बुत परस्त साथियों ने आपस में मशवरा करके इन सब ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत कर ली और ज़ाहरा इस्लाम में दाखिल हो गए। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। जो लोग अपने करतूतों पर खुश होते हैं और चाहते हैं कि जो नेक काम इन्होंने नहीं किए ख्वाह मखुआ उन पर भी उनकी तारीफ की जाए, सो ऐसे लोगों के लिए हरगिज़ ख्याल ना करो कि वो अजाब से बच सकेंगे। हदीस नंबर 4567। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मोहम्मद बिन जाफ़र ने खबर दी, इन्होंने कहा कि मुझसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अबू सईद खदरी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में चंद मुनाफिकीन ऐसे थे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए तशरीफ़ ले जाते तो ये मदीना में पीछे रह जाते और पीछे रह जाने पर बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते तो अज़र बयान करते और कस्में खा लेते, बल्कि उनको ऐसे काम पर तारीफ होना पसंद आता जिसको इन्होंने ना किया होता और बाद में चिकनी चढ़ी बातों से अपनी बात बनाना चाहते। अल्लाह ताला ने उसी पर ये आयत ला यहसबन अल्ज़ीन यफ़रहून आखिर आयत तक उतारी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। जो लोग अपने करतूतों पर खुश होते हैं और चाहते हैं कि जो नेक काम इन्होंने नहीं किए ख्वाह मखुआ उन पर भी उनकी तारीफ की जाए, सो ऐसे लोगों के लिए हरगिज़ ख्याल ना करो कि वो अजाब से बच सकेंगे। हदीस नंबर 4568। तर्जुमा। मुझसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम ने खबर दी, इन्हें इब्न जरेज ने खबर दी, इन्हें इब्न नबी मलिका ने और इन्हें अलक़मा बिन वक़ास ने खबर दी कि मरवान बिन हुक्म ने, जब वो मदीना के अमीर थे, अपने दरबान से कहा कि राफ़े इब्न अब्बास के यहाँ जाओ और उनसे पूछो कि आयत ला यहसबन अल्ज़ीन यफ़रहून की रूह से तो हम सबको अजाब होना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी उन निमतों पर जो इसको मिली हैं खुश है और ये चाहता है कि जो काम उसने किया नहीं इस पर भी इसकी तारीफ हो। अबू राफ़ा ने इब्न अब्बास से जाकर पूछा तो इब्न अब्बास ने कहा, तुम मुसलमानों से इस आयत का किया ताल्लुक़? ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को बुलाया था और उनसे एक दिन की बात पूछी थी जो उनकी आसमानी किताब में मौजूद थी। इन्होंने असल बात को तो छुपाया और दूसरी गलत बात बयान कर दी, फिर भी इस बात के ख्वाहिशमंद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल के जवाब में जो कुछ इन्होंने बताया है इस पर उनकी तारीफ की जाए, और इधर असल हकीकत को छुपा कर भी बड़े खुश थे। फिर इब्न अब्बास ने इस आयत की तिलावत वाज़ अल्लाह मीसाक़ अल्ज़ीन अल किताब की, और वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने अहल किताब से अहद लिया था कि किताब को पूरी ज़ाहिर कर देना लोगों पर। आयत यफ़रहून बमा आतवा वहबूनान यहमदू बमा लम यफ़ालू। जो लोग अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि जो काम नहीं किए हैं उन पर भी उनकी तारीफ़ की जाए। तक हश्शाम बिन यूसुफ के साथ इस हदीस को अब्दुर्रज़ाक़ ने भी इब्न जरेज से रिवायत किया। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमको हुज्जाज बिन मोहम्मद ने खबर दी, इन्होंने इब्न जरेज से कहा मुझको इब्न नबी मलिका ने खबर दी, उनको हमीद बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने कि मरवान ने अपने दरबान राफ़े से कहा, फिर यही हदीस बयान की। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात दिन के इख्तिलाफ होने में अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। इख्तिलाफ से रात व दिन का घटना बढ़ना मुराद है, जो मौसमी असरात से होता रहता है, ये सब कुदरत इलाही के नमूने हैं। हदीस नंबर 4569। तर्जुमा। घर रह गया।
पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी मैमूना के साथ थोड़ी देर तक बातचीत की, फिर सो गए। जब रात का तीसरा हिस्सा बाकी रहा तो आप उठकर बैठ गए और आसमान की तरफ नज़र की और ये आयत तिलावत की, इनफी खल्क़ल समावात वाल अर्ज़ व इख्तिलाफ़ अल-लैल वान-नहार लाआयात लाउली अला अलबाब, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और दिन व रात के मुख्तलिफ होने में अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और वज़ू किया और मसवाक की, फिर 11 रकअतें तहज्जुद और वतर पढ़ी। जब बिलाल ने फजर की अजान दी तो आपने 2 रकत फजर की सुन्नत पढ़ी और बाहर मस्जिद में तशरीफ़ लाए और फजर की नमाज पढ़ाई। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। जो अल्लाह को खड़े और बैठे और अपनी करोटों पर हर हालत में याद करते रहते हैं और आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश में गौर करते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे परवरिदगार, तूने इस कायनात को बेकार पैदा नहीं किया। आखिर आयत तक। हदीस नंबर 4570। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन महदी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक बिन अनस ने, उनसे मखरमा बिन सुलेमान ने, उनसे करीब ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि मैं एक रात अपनी खाला मैमूना के यहाँ सो गया। इरादा ये था कि आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज देखूंगा। मेरी खाला ने आपके लिए गदा बिछा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तूल में लेट गए। फिर जब आखिरी रात में बेदार हुए तो चेहरा मुबारक पर हाथ फेर कर नींद के आसार दूर किए। फिर सूरत अल इमरान की आखिरी 10 आयत पढ़ी। इसके बाद आप एक मुश्कीज़ा के पास आए और इससे पानी लेकर वज़ू किया और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। मैं भी खड़ा हो गया और जो कुछ आपने किया था वही सब कुछ मैंने भी किया और आपके पास आकर आपके बाजू में भी खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर अपना दाहिना हाथ रखा और मेरे कान को शफ़क़त से पकड़कर मिलने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फिर 2 रकत 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 नमाज पढ़ी, फिर वतर की नमाज पढ़ी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। ए हमारे रब, तूने जिसे दोज़ख में दाखिल कर दिया, इसे तूने वाकई जलील व रसू कर दिया और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं है। हदीस नंबर 4571। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मान बिन ईसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे मखरमा बिन सुलेमान ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास के ग़ुलाम करीब ने और इन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी कि एक रात वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा मैमूना के घर में रह गए जो उनकी खाला थीं। इन्होंने कहा कि मैं बिस्तर के अर्ज़ में लेटा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी तूल में लेटे, फिर आप सो गए और आधी रात में या इससे थोड़ी देर पहले या बाद में आप बेदार हुए और चेहरा पर हाथ फेर कर नींद को दूर किया। फिर सूरत अल इमरान की आखिरी 10 आयतों की तिलावत की। इसके बाद आप उठकर मुश्कीज़ा के करीब गए जो लटका हुआ था। उसके पानी से आपने वज़ू बहुत ही अच्छी तरह से पूरे आदाब के साथ किया और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। मैंने भी आप ही की तरह वज़ू वग़ैरह किया और नमाज के लिए आपके बाजू में जाकर खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और उसी हाथ से बतौर शफ़क़त मेरा कान पकड़कर मिलने लगे। फिर आपने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर 2 रकत पढ़ी, फिर 2 रकत पढ़ी, फिर 2 रकत पढ़ी, फिर 2 रकत पढ़ी और फिर 2 रकत पढ़ी और आखिर में वतर की नमाज पढ़ी। इससे फारिग होकर आप लेट गए। फिर जब मौज़न आया तो आप उठे और 2 हल्की फजर की सुन्नत रकतें पढ़ने और नमाज फ़र्ज़ के लिए बाहर तशरीफ़ मस्जिद में ले गए और सुबह की नमाज पढ़ाई। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब हदीस नंबर 4572। तर्जुमा। बाब सूरत निसा की तफसीर। इब्न अब्बास ने कहा कि कुरान मजीद की आयत यस्तनकिफ यस्तकबर के मानी में है। क़वामा क़ियामा यानी जिस पर तुम्हारे गुज़रान की बुनियाद कायम है। लहन सबीला यानी शादी शुदा के लिए रजम और कुंवारे के लिए कोड़े की सज़ा है जब वो ज़िना करें। और दूसरे लोगों ने कहा आयत में मसना वसलसा वरबा से मुराद 2 2 3 3 और 4 4 हैं। अहल अरब रबा से आगे इस वज़न से तजावुज़ नहीं करते। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत वन फ़फ्तमान ला तक़िस्तु फ़ी अलितामी की तफसीर। हदीस नंबर 4573। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम बिन यूसुफ ने खबर दी, उनसे इब्न जरेज ने कहा मुझको हश्शाम बिन रून ने खबर दी, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि एक आदमी की परवरिश में एक यतीम लड़की थी, फिर इसने इससे निकाह कर ली। इस यतीम लड़की की मलकियत में खजूर का एक बाग था।
उसी बाग की वजह से ये शख्स इसकी परवरिश करता रहा, हालांकि दिल में इससे कोई ख़ास लगाव ना था। इस सिलसिले में ये आयत उतरी, वन ख़फ्तमान ला तक़िस्तु फ़ी अलीतामी, कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीमों के हक़ में इंसाफ ना कर सकोगे। हश्शाम बिन यूसुफ ने कहा, मैं समझता हूँ। इब्न जरेज ने यूँ कहा, ये लड़की इस दरख्त और दूसरे माल असबाब में इस मर्द की हिस्सादार थी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान, बाब आयत वन ख़फ्तमान ला तक़िस्तु फ़ी अलीतामी की तफसीर। हदीस नंबर 4574। तर्जुमा। हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्होंने कहा मुझको रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी, इन्होंने आयशा से आयत वन ख़फ्तमान ला तक़िस्तु फ़ी अलीतामी का मतलब पूछा। इन्होंने कहा, मेरे भांजे, इसका मतलब यह है कि एक यतीम लड़की अपने वली की परवरिश में हो और इसकी जायदाद की हिस्सादार हो, तरके की रूह से उसका हिस्सा हो। अब इस वली को इसकी मालदारी खूबसूरती पसंद आए, इससे निकाह करना चाहे, पर इंसाफ के साथ पूरा महर, जितना महर इसको दूसरे लोग दें, ना देना चाहे, तो अल्लाह ताला ने इस आयत में लोगों को ऐसी यतीम लड़कियों के साथ जब तक उनका पूरा महर इंसाफ के साथ ना दें, निकाह करने से मना फरमाया और उनको यह हुक्म दिया कि तुम दूसरी औरतों से जो तुमको भली लगी निकाह कर लो, यतीम लड़की का नुकसान ना करो। रू ने कहा, आयशा कहती थीं, इस आयत के उतरने के बाद लोगों ने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में मसला पूछा। उस वक्त अल्लाह ने ये आयत वस्तफ्तूनक फ़ी अन-निसा उतारी। आयशा ने कहा, दूसरी आयत में ये जो फरमाया वतरगबूनान तनखोहन, यानी वो यतीम लड़कियां जिनका माल वाओ जमाल कम हो और तुम उनके साथ निकाह करने से नफरत करो। इसका मतलब ये है कि जब तुम इन यतीम लड़कियों से जिनका माल वाओ जमाल कम हो निकाह करना नहीं चाहते, तो माल और जमाल वाली यतीम लड़कियों से भी जिनसे तुमको निकाह करने की रग़बत है निकाह ना करो, मगर जब इंसाफ के साथ उनका महर पूरा अदा करो। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर। और जो शख्स नादार हो वो मुनासिब मिक़दार में खा ले, और जब अमानत इन यतीम बच्चों के हवाले करने लगो तो उन पर गवाह भी कर लिया करो। आखिर आयत तक। हदीस नंबर 4575। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन राहुया ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन नमीर ने खबर दी, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, और उनसे आयशा ने, अल्लाह ताला के इरशाद, वमन कान गनी फ़लस्तिफ़ वमन कान फ़क़ीरा फ़लियाकल बालमरूफ़, बल्कि जो शख्स खुशहाल हो वो अपने को बिल्कुल रोके रखे, अलबत्ता जो शख्स नादार हो वो वाजिबी तौर पर खा सकता है। के बारे में फरमाया कि यह आयत यतीम के बारे में उतरी है कि अगर वली नादार हो तो यतीम की परवरिश और देखभाल की उजरत में वो वाजिबी तौर पर यतीम के माल में से कुछ खा सकता है, बशर्ती का नियत में फसाद ना हो। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर। और जब तकसीम विरसा के वक्त कुछ अजीज़ क़राबतदार और बच्चे और यतीम और मिस्किन लोग मौजूद हों तो उनको भी कुछ दे दिया करो। आखिर आयत तक। हदीस नंबर 4576। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन हमीद ने बयान किया, हमको उबैदुल्लाह अशजई ने खबर दी, इन्हीं सुफियान सोरी ने, इन्हीं अब्बा सहाक़ शीबानी ने, इन्हीं अकरमा ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने आयत वाज़ा हज़र अलक़िस्मा आउलू अक़रबी वालितामी वालमसाकिन, और जब तकसीम के वक्त अजीज़ व अक़ारिब और यतीम और मिस्किन मौजूद हों के मुताल्लिक़ फ़रमाया कि यह मुहकम है, मनसूख़ नहीं है। अकरमा के साथ इस हदीस को सईद बिन जबीर ने भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत किया है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की मीरास के बारे में वसीयत करता है। हदीस नंबर 4577। तर्जुमा। हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया कि इन्हें इब्न जरेज ने खबर दी, बयान किया कि मुझे इब्न मुनकदर ने खबर दी, और उनसे जाबिर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ कबीला बनो सलमा तक पैदल चलकर मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। आपने मुलाहज़ा फरमाया कि मुझ पर बेहोशी तारी है, इसलिए आपने पानी मंगवाया और वज़ू करके इसका पानी मुझ पर छिड़का, मैं होश में आ गया। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका क्या हुक्म है, मैं अपने माल का क्या करूं? इस पर यह आयत नाज़ल हुई, यौसीकम अल्लाह फ़ी औलादकम, के अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की मीरास के बारे में हुक्म देता है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान, बाब आयत की तफसीर। और तुम्हारे लिए इस माल का आधा हिस्सा है जो तुम्हारी बीवियां छोड़ जाएं जबकि उनके औलाद ना हो। हदीस नंबर 4578। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे वर्क़ा बिन उम्र युश्करी ने, उनसे इब्न अबी निजी ने, उनसे अता ने, और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि अबतदा इस्लाम में मैयत का सारा माल औलाद को मिलता था, अलबत्ता वालिदैन को वो मिलता जो मैयत उनके लिए वसीयत कर जाए, फिर अल्लाह ताला ने जैसा मुनासिब समझा इसमें नस्फ़ कर दी।
चुनाचा अब मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्सा के बराबर है और मैयत के वालिदैन यानी इन दोनों में हर एक के लिए इस माल का छठा हिस्सा है। बशर्ती का मैयत के कोई औलाद हो, लेकिन अगर इसके कोई औलाद ना हो बल्कि इसके वालिदैन ही इसके वारिस हों तो उसकी मां का 1/3 हिस्सा होगा और बीवी का 8वां हिस्सा होगा। जबकि औलाद हो लेकिन अगर औलाद ना हो तो चौथाई होगा और शौहर का आधा हिस्सा होगा। जबकि औलाद ना हो लेकिन अगर औलाद हो तो चौथाई होगा। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम बेवा औरतों के ज़बरदस्ती मालिक बन जाओ, आखिर आयत तक। हदीस नंबर 4579। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा हमसे इसबात बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे अब्बा सहाब शीबानी ने बयान किया, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने, और शीबानी ने कहा कि ये हदीस अबुल हसन अता सिवाई ने भी बयान की है और जहाँ तक मुझे यकीन है इब्न अब्बास ही से बयान किया है कि आयत या आयहा अलजीन आमन वाला यह लकमान तरसवा अलनिसा करहा वला तजिलोहन लतजबू बबाजमा आतियत मोहन ईमान वालों। तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम औरतों के ज़बरदस्ती मालिक हो जाओ और ना इन्हीं इस ग़र्ज़ से क़ैद रखो कि तुमने इन्हीं जो कुछ दे रखा है इसका कुछ हिस्सा वसूल कर लो। इन्होंने बयान किया कि जाहलियत में किसी औरत का शौहर मर जाता तो शौहर के रिश्तेदार इस औरत के ज़्यादा मुस्तहिक़ समझे जाते। अगर इन्हीं में से कोई चाहता तो इससे शादी कर लेता, या फिर वो जिससे चाहते उसी से उसकी शादी करते और चाहते तो ना भी करते। इस तरह औरत के घर वालों के मुकाबला में भी शौहर के रिश्तेदार इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ समझे जाते। उसी पर यह आयत या आयहा अलजीन आमन वाला यह लकमान तरसवा अलनिसा करहा नाज़िल हुई। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और जो माल वालिदैन और क़राबतदार छोड़ जाएं इसके लिए हमने वारिस ठहरा दे हैं। हदीस नंबर 4580। तर्जुमा। हमसे सलत बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्बासामा ने बयान किया, उनसे इदरीस ने, उनसे तलहा बिन मसरफ ने, उनसे सईद बिन जबीर ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि आयत में वलकल जलना मवाली से मुराद वारिस हैं और वालजीन आक़दत आयमानकम की तफसीर यह है कि शुरू में जब मुहाजिरीन मदीना आए तो क़राबतदारों के अलावा अंसार के वारिस मुहाजिरीन भी होते थे। इस भाईचारा की वजह से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान कराया था, फिर जब ये आयत नाज़िल हुई कि वलकल जलना मवाली तो पहला तरीक़ा मनसूख हो गया। फिर बयान किया कि वालजीन आक़दत आयमानकम से वो लोग मुराद हैं जिनसे दोस्ती और मदद और खैर खाही की कसम खा कर अहद किया जाए, लेकिन अब उनके लिए मीरास का हुक्म मनसूख हो गया मगर वसीयत का हुक्म रह गया। इस असनाद में अब्बासामा ने इदरीस से और इदरीस ने तलहा बिन मसरफ से सुना है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। बेशक अल्लाह एक ज़र्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। मुसक़ाल ज़रा से ज़र्रा बराबर मुराद है। हदीस नंबर 4581। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने बयान किया, कहा हमसे अबू उमर हिफ्स बिन मैसरा ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अब्बू सईद ख़दरी ने बयान किया कि कुछ सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत के दिन हम अपने रब को देख सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम, किया सूरज को दोपहर के वक्त देखने में तुम्हें कोई दुश्वारी होती है जबकि इस पर बादल भी ना हो? सहाबा ने अर्ज़ किया कि नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और किया 14वीं रात के चंद को देखने में तुम्हें कुछ दुश्वारी पेश आती है जबकि इस पर बादल ना हो? सहाबा ने अर्ज़ किया कि नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस उसी तरह तुम बल्ला किसी दिक्कत और रुकावट के अल्लाह ताला को देखोगे। क़यामत के दिन एक मनादी निदा करेगा कि हर उम्मत अपने झूठे माबूदों के साथ हाजिर हो जाए। उस वक्त अल्लाह के सिवा जितने भी बुतों और पत्थरों की पूजा होती थी सबको जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। फिर जब वही लोग बाकी रह जाएंगे जो सिर्फ अल्लाह की पूजा किया करते थे, ख्वाह नेक हों या गनहगार और अहल किताब के कुछ लोग, तो पहले यहूद को बुलाया जाएगा और पूछा जाएगा कि तुम अल्लाह के सिवा किसकी पूजा करते थे? वो अर्ज़ करेंगे कि अज़ीर इब्न अल्लाह की। अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा लेकिन तुम झूठे थे, अल्लाह ने ना किसी को अपनी बीवी बनाया और ना बेटा, अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे, हमारे रब, हम प्यासे हैं, हमें पानी पिला दे। इन्हें इशारा किया जाएगा कि क्या इधर नहीं चलते? चुनाचा सबको जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। वहाँ चमकती रेत पानी की तरह नजर आएगी, बाज के टुकड़े के दे रही होगी। फिर सबको आग में डाल दिया जाएगा। फिर निसारी को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि तुम किसकी इबादत किया करते थे? वो कहेंगे कि हम मसीह इब्न अल्लाह की इबादत करते थे। उनसे भी कहा जाएगा कि तुम झूठे थे,
अल्लाह ने किसी को बीवी और बेटा नहीं बनाया, फिर उनसे पूछा जाएगा कि क्या चाहते हो, और उनके साथ यहूदियों की तरह बर्ताव किया जाएगा, यहाँ तक कि जब उन लोगों के सिवा और कोई बाकी ना रहेगा जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, ख्वाह वो नेक हों या गुनहगार, तो उनके पास उनका रब एक सूरत में जलवागिर होगा जो पहली सूरत से जिसको वो देख चुके होंगे मिलती जलती होगी। ये वो सूरत ना होगी। अब इनसे कहा जाएगा, अब तुम्हें किसका इंतज़ार है? हर उम्मत अपने माबूदों को साथ लेकर जा चुकी। वो जवाब देंगे कि हम दुनिया में जब लोगों से जिन्होंने कफर किया था जुदा हुए तो हम उनमें सबसे ज़्यादा मुहताज थे, फिर भी हमने उनका साथ नहीं दिया और अब हमें अपने सच्चे रब का इंतज़ार है जिसकी हम दुनिया में इबादत करते रहे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम्हारा रब में ही हूँ। इस पर तमाम मुसलमान बोल उठेंगे कि हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। 2 या 3 मरतबा यूँ कहेंगे हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाले नहीं हैं। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक एक गवाह हाजिर करेंगे और उन लोगों पर तुझको बतौर गवाह पेश करेंगे। हदीस नंबर 4582। तर्जुमा। हमसे सदका बिन फजल ने बयान किया, कहा हमको यही बिन सईद क़ितान ने खबर दी, इन्हीं सुफियान सोरी ने, इन्हीं सुलेमान ने, इन्हीं इब्राहिम ने, इन्हीं अबीदा ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन मसूद ने। यही ने बयान किया कि हदीस का कुछ हिस्सा इमरू बिन मरा से है, बुवासता इब्राहिम कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कुरान पढ़ कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं पढ़ के सुनाऊं? वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही नाज़ल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दूसरे से सुनना चाहता हूँ। चुनाचा मैंने आपको सूरत निसा सुनानी शुरू की। जब मैं फ़िकी फ़ज़ा जिना मन कल आमा बशीद व जना बकली हौला शहीदा पर पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहर जाओ। मैंने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बह रहे थे। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आया हो और पानी ना हो तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम करे। हदीस नंबर 4583। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम बैकंदी ने बयान किया, कहा हमको अब्दा बिन सुलेमान ने खबर दी, इन्हीं हिशाम बिन रू ने, इन्हीं उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मुझसे असमा का एक हार गुम हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को उसे तलाश करने के लिए भेजा। इधर नमाज का वक्त हो गया, ना लोग वज़ू से थे और ना पानी मौजूद था, इसलिए वज़ू के बग़ैर नमाज पढ़ी गई। इस पर अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाज़ल की। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत आउली अलामर मनकम की तफसीर। हदीस नंबर 4584। तर्जुमा। हमसे सदका बिन फजल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको हुज्जाज बिन मोहम्मद ने खबर दी, इन्हीं इब्न जरेज ने, इन्हीं याला बिन मुस्लिम ने, इन्हीं सईद बिन जबीर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि आयत आटियु अल्लाह व आटियु अल रसूल व आउली अलामर मनकम, अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अपने में से हाकिमों की। अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा बिन कैस बिन निदी के बारे में नाज़ल हुई थी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक मुहिम पर बतौर अफसर के रवाना किया था। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान बाब आयत की तफसीर। तेरे रब की कसम, ये लोग हरगिज़ ईमानदार ना होंगे जब तक ये लोग इस झगड़े में जो उनके आपस में हों तुझको अपना हुक्म ना बना लें, फिर तेरे फैसले को बरज़ा व रग़बत तस्लीम ना कर लें। हदीस नंबर 4585। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने और उनसे रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि ज़ुबैर का एक अंसारी सहाबी से मकाम हिरा की एक नाली के बारे में झगड़ा हो गया कि इससे कौन अपने बाग को पहले संचने का हक़ रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुबैर, पहले तुम अपने बाग संच लो, फिर अपने पड़ोसी को जल्द पानी दे देना। इस पर इस अंसारी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसलिए कि ये आपके फूफीज़ाद भाई हैं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबैर, अपने बाग को संचो और पानी इस वक्त तक रोके रखो कि मुंडियर तक भर जाए, फिर अपने पड़ोसी के लिए उसे छोड़ो। पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी के साथ अपने फ़ैसले में रियायत रखी थी, लेकिन इस मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबैर को साफ तौर पर उनका पूरा हक़ दे दिया, क्योंकि अंसारी ने ऐसी बात कही थी जिससे आपका गुस्सा होना कुदरती था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पहले फ़ैसला में दोनों के लिए रियायत रखी थी।
ज़ुबैर ने बयान किया कि मेरा ख़याल है ये आयत उसी सिलसिले में नाज़ल हुई थी फ़िला वरबकला यौमनुन हत्ता यहकमुक फ़ीमा शजर बेनहम, तेरे परवरदिगार की कसम है कि ये लोग ईमानदार न होंगे जब तक ये इस झगड़े में जो उनके आपस में हूँ आपको हुक्म न बना लीं और आपके फ़ैसले को खले दिल के साथ बरज़ा व रग़बत तस्लीम करने के लिए तैयार न हों। सही बुखारी किताब तफ़ासीर का बयान बाब आयत फ़ावलक मअज़ीन आनम अल्लाह अलहम मन नबियन की तफ़सीर। हदीस नंबर 4586। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन हुशब ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नबी मरज़ अलमुत में बीमार होता है तो इसे दुनिया और आखिरत का इख्तियार दिया जाता है। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरज़ अलमुत में जब आवाज़ गले में फंसने लगी तो मैंने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मअज़ीन आनम अल्लाह अलहम मन नबियन वाल सद्दीक़ीन वाल शहदा वाल सालिहीन, उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, यानी अनबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के साथ। इसलिए मैं समझ गई कि आपको भी इख्तियार दिया गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह बालरफ़िक़ अल्लाह कहकर आखिरत को पसंद फरमाया। सही बुखारी किताब तफ़ासीर का बयान बाब आयत की तफ़सीर। और तुम्हें किया हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करते और उन लोगों की मदद के लिए नहीं लड़ते जो कमज़ोर हैं, मर्दों में से और औरतों और लड़कों में से। हदीस नंबर 4587। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया कि मैंने इब्न अब्बास से सुना, इन्होंने कहा कि मैं और मेरी वालिदा मुस्तज़फ़ीन कमज़ोरों में से थे। सही बुखारी किताब तफ़ासीर का बयान बाब आयत की तफ़सीर। और तुम्हें किया हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करते और उन लोगों की मदद के लिए नहीं लड़ते जो कमज़ोर हैं, मर्दों में से और औरतों और लड़कों में से। हदीस नंबर 4588। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे इब्न अबी मलिका ने कि इब्न अब्बास ने आयत ला अल-मुस्तज़फ़ीन मन अर्रजाल वालंसा वालोल्दान की तिलावत की और फरमाया कि मैं और मेरी वालिदा भी उन लोगों में से थीं जिन्हें अल्लाह ताला ने माज़ूर रखा था। और इब्न अब्बास से रिवायत है कि हसरत मानी में ज़ाक़त के है, तलुआ यानी तुम्हारी ज़ुबानों से गवाही अदा होगी। और इब्न अब्बास के सिवा दूसरे शख्स अबू अबीदा ने कहा मरागम का मानी हिजरत का मकाम। अरब लोग कहते हैं रागमत कौमी, यानी मैंने अपनी कौम वालों को जुमा कर दी। मौकूता के मानी एक वक्त मुकर्ररा पर, यानी जो वक्त उनके लिए मुकर्रर हो। सही बुखारी किताब तफ़ासीर का बयान बाब आयत की तफ़सीर यानी और तुम्हें किया हो गया है कि तुम मुनाफ़िकीन के बारे में दो गिरोह हो गए हो, हालांकि अल्लाह ने उनके करतूतों के बाइस इन्हें उल्टा फेर दिया। हदीस नंबर 4589। तर्जुमा मुझसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर और अबदाल रहमान ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे ईदी ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन यजीद ने और उनसे ज़ैद बिन साबित ने आयत फमा लकम फ़ी अल मुनाफ़िकीन फ़ितीन। और तुम्हें किया हो गया है कि तुम मुनाफ़िकीन के बारे में दो फरीक हो गए हो के बारे में फरमाया कि कुछ लोग मुनाफ़िकीन जो ऊपर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जंग उहुद में आप छोड़कर वापस चले आए तो उनके बारे में मुसलमानों की दो जमातें हो गईं। एक जमात तो ये कहती थी कि या रसूल अल्लाह, उन मुनाफ़िकीन से क़त्ल कीजिए, और एक जमात ये कहती थी कि उनसे क़त्ल ना कीजिए। इस पर यह आयत उतरी फमा लकम फ़ी अल मुनाफ़िकीन फ़ितीन कि तुम्हें किया हो गया है कि तुम मुनाफ़िकीन के बारे में दो गिरोह हो गए हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मदीना तीब है, ये खबासत को इस तरह दूर कर देता है जैसे आग चांदी की मेल कचील को दूर कर देती है। सही बुखारी किताब तफ़ासीर का बयान अल्लाह ताला का कौल कि जो किसी मुसलमान को कसदा मार डालेगा इसकी सज़ाया है कि हमेशा दोज़ख में रहेगा। हदीस नंबर 4590। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा हमसे मगीरा बिन नोमान ने बयान किया, कहा मैंने सईद बिन जबीर से सुना, इन्होंने बयान किया कि उलमा कूफा का इस आयत के बारे में इख्तिलाफ हो गया था। चुनाचा में इब्न अब्बास की खिदमत में इसके लिए सफ़र करके गया और उनसे इसके मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने फरमाया कि ये आयत वमन यक़त्ल मोमना मुतामदा फ़जज़ाउआ जहन्नम, और जो कोई मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे इसकी सज़ा दोज़ख है, नाज़ल हुई। और इस बाब की ये सबसे आखिरी आयत है, उसे किसी आयत ने मनसूख नहीं किया है। सही बुखारी किताब तफ़ासीर का बयान बाब आयत की तफ़सीर। और जो तुम्हें सलाम करे उसे ये ना कह दिया करो कि तो मुसलमान ही नहीं,
हदीस नंबर 4591। तर्जुमा। मुझसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे अता ने और उनसे इब्न अब्बास ने आयत वला तक़ूलू लमन अलक़ी अलैकुमुस्सलामु लसत मोमना, और जो तुम्हें सलाम करता हो उसे ये मत कह दिया करो कि तो मोमिन ही नहीं है, के बारे में फरमाया कि एक साहब मरदास नामी अपनी बकरियां चरा रहे थे। एक मुहिम पर जाते हुए कुछ मुसलमान इन्हें मिले तो इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, लेकिन मुसलमानों ने बहाना खोर जानकर इन्हें कत्ल कर दी और उनकी बकरियों पर कब्जा कर ली। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की थी। आखिर आयत अर्ज़ल दुनिया, इससे इशारा इन्हीं बकरियों की तरफ था। बयान किया कि इब्न अब्बास ने अस्सलाम क़ुरात की है, मशहूर क़ुरात भी यही है। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। ईमान वालों में से बल्ला अज़र घरों में बैठ रहने वाले और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। हदीस नंबर 4592। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह बिन कीसान ने, उनसे इब्न शहाब ने और उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया, इन्होंने मरवान बिन हुक्म बिन वास को मस्जिद में देखा। बयान किया कि फिर मैं उनके पास आया और उनके पहलू में बैठ गया। इन्होंने मुझे खबर दी और इन्हें ज़ैद बिन साबित ने खबर दी थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये आयत लिखवाई, ला यस्तवी अलकायदुन मन अलमुमिनीन वाला मुजाहिदुन फी सबीलिल्लाह। मुसलमानों में से घर बैठ रहने वाले और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकता। अभी आप ये आयत लखवा ही रहे थे कि इब्न मकतूम आ गए और अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, अगर मैं जिहाद में शिरकत कर सकता तो यकीनन जिहाद करता। वो अंधे थे। इसके बाद अल्लाह ने अपने रसूल पर वही उतारी। आपकी रान मेरी रान पर थी, शिद्दत वही की वजह से इसका मुझ पर इतना बोझ पड़ा कि मुझे अपनी रान के फट जाने का अंदेशा हो गया। आखिर ये कैफियत ख़त्म हुई और अल्लाह ताला ने ग़ैर औली अल-ज़रर के अल्फाज और नाज़ल किए। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। ईमान वालों में से बल्ला अज़र घरों में बैठ रहने वाले और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। हदीस नंबर 4593। तर्जुमा। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्वा सहाक़ ने और उनसे बरा बिन आज़ब ने कहा कि जब आयत ला यस्तवी अलकायदुन मन अलमुमिनीन नाज़ल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन साबित को किताबत के लिए बुलाया और इन्होंने वो आयत लिख दी। फिर अब्दुल्लाह बिन मकतूम हाजिर हुए और अपने नाबीना होने का अज़र पेश किया तो अल्लाह ताला ने ग़ैर औली अल-ज़रर के अल्फाज और नाज़ल किए। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। ईमान वालों में से बल्ला अज़र घरों में बैठ रहने वाले और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। हदीस नंबर 4594। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे इसराइल ने बयान किया, उनसे अब्वा सहाक़ ने बयान किया और उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि जब आयत ला यस्तवी अलकायदुन मन अलमुमिनीन नाज़ल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़लन यानी ज़ैद बिन साबित को बुलाओ। वो अपने साथ दवात और तख्ती या शाना की हड्डी लेकर हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिखो ला यस्तवी अलकायदुन मन अलमुमिनीन वाला मुजाहिदुन फी सबीलिल्लाह। इब्न मकतूम ने, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मौजूद थे, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं नाबीना हूँ। चुनाचा वहीं इस तरह आयत नाज़ल हुई, ला यस्तवी अलकायदुन मन अलमुमिनीन ग़ैर औली अल-ज़रर वाला मुजाहिदुन फी सबीलिल्लाह। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। ईमान वालों में से बल्ला अज़र घरों में बैठ रहने वाले और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। हदीस नंबर 4595। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमको हश्शाम ने खबर दी, इन्हें इब्न जरेज ने खबर दी। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा और मुझसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमको अब्दुर्रज़ाक़ ने खबर दी, कहा हमको इब्न जरेज ने खबर दी, कहा हमको अबदाल करीम जर्जी ने खबर दी, इन्हें अब्दुल्ला बिन हारिस के ग़ुलाम मक़सम ने खबर दी और इन्हें इब्न अब्बास ने खबर दी कि ला यस्तवी अलकायदुन मन अलमुमिनीन से इशारा है उन लोगों की तरफ जो बदर में शरीक थे और जिन्होंने बल्ला किसी अज़र के बदर की लड़ाई में शिरकत नहीं की थी, वो दोनों बराबर नहीं हो सकता। सही बुखारी। किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। बेशक उन लोगों की जान जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर रखा है, जब फरिश्ते कब्ज़ा करते हैं तो उनसे कहते हैं कि तुम किस काम में थे, वो बोलेंगे हम इस मुल्क में बेबस कमज़ोर थे। फरिश्ते कहेंगे कि क्या अल्लाह की सरज़मीन फराख ना थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। हदीस नंबर 4596।
तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यजीद अल-मकरी ने बयान किया, कहा हमसे हैवा बिन शरीफ वगैरह इब्न लहिया ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन अबदाल रहमन अबुल असूद ने बयान किया, कहा कि अहल मदीना को जब मक्का में इब्न ज़ुबैर की खिलाफत का दूर था, शाम वालों के खिलाफ एक फ़ौज निकालने का हुक्म दिया गया। इस फ़ौज में मेरा नाम भी लिखा गया तो इब्न अब्बास के ग़ुलाम अकरमा से मी मिला और इन्हें इस सूरत हाल की इत्तिला की। इन्होंने बड़ी सख्ती के साथ इससे मना किया और फरमाया कि मुझे इब्न अब्बास ने खबर दी थी कि कुछ मुसलमान मुशरिकीन के साथ रहते थे और इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनकी ज़ियादती का सबब बनते। फिर तीर आता और वो सामने पड़ जाता तो इन्हें लग जाता और इस तरह उनकी जान जाती या तलवार से गलती में इन्हें कत्ल कर दी जाता। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, नलज़ीन तौफ़ाहम अलमलाइकत ज़ालिमी अनफ़ुसहम, बेशक उन लोगों की जान जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर रखा है जब फरिश्ते कब्ज़ा करते हैं। आखिर आयत तक। इस रिवायत को लीस बिन साद ने भी अबुल असूद से नकल किया है। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। सिवाय उन लोगों के जो मर्दों और औरतों बच्चों में से कमज़ोर हैं कि ना कोई तदबीर ही कर सकते हैं और ना कोई राह पाते हैं कि हिजरत कर सकें। हदीस नंबर 4597। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी मलिका ने और उनसे इब्न अब्बास ने इल्ला अल-मुस्तज़फ़ीन के मुताल्लिक़ फरमाया कि मेरी मुँह भी उन्हीं लोगों में थी जिन्हें अल्लाह ने माज़ूर रखा था। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। तो ये लोग ऐसे हैं कि अल्लाह इन्हें मुआफ़ कर देगा और अल्लाह तो बड़ा ही मुआफ़ करने वाला और बख्श देने वाला है। हदीस नंबर 4598। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शैबान ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज में रुकू से उठते हुए सिमिल्लाह लमन हमदा कहा और फिर सजदा में जाने से पहले ये दुआ की, ए अल्लाह अयाशा बिन अबी रबिया को निजात दे, ए अल्लाह सलमा बिन हश्शाम को निजात दे, ए अल्लाह वलीद बिन वलीद को निजात दे, ए अल्लाह कमज़ोर मोमनों को निजात दे, ए अल्लाह किफ़ार मुज़िर को सख्त सज़ा दे, ए अल्लाह इन्हें ऐसे कहतसाली में मुब्तला कर जैसी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहतसाली आई थी। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। और तुम्हारे लिए इसमें कोई हरज नहीं कि अगर तुम्हें बारिश से तकलीफ़ हो रही हो या तुम बीमार हो तो अपने हथियार उतार कर रख दो। हदीस नंबर 4599। तर्जुमा। हमसे अबुल हसन मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको हुज्जाज बिन मोहम्मद आवर ने खबर दी, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया, इन्हीं याला बिन मुस्लिम ने खबर दी, इन्हीं सईद बिन जबीर ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने आयत उनकान बकम आजीमन मतराव कुंतम मर्जी के सिलसिले में बतलाया कि अबदाल रहमन बिन औफ ज़ख्मी हो गए थे, उनसे मुताल्लिक़ ये आयत नाज़िल हुई। सही बुखारी किताब तफासिर का बयान। बाब आयत की तफसीर। लोग आपसे औरतों के बारे में मसला मालूम करते हैं, आप कह दें कि अल्लाह तुम्हें औरतों की बाबत हुक्म देता है और वो हुक्म वही है जो तुमको कुरान मजीद में उन यतीम लड़कियों के हक़ में सुनाया जाता है जिनको तुम पूरा हक़ नहीं देते। हदीस नंबर 4600। तर्जुमा। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा हमाद बिन उसामा ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने आयत वस्तफ्तूनक फ़ी अल-निसा क़ुल अल्लाह यफ्तीकुम फ़हन। लोग आपसे औरतों के बारे में फ़तवी मांगते हैं, आप कह दें कि अल्लाह तुम्हें उनके बारे में वही फ़तवी देता है। आयत वतरगबूनान तनख़ूहन तक। इन्होंने बयान किया कि ये आयत ऐसे शख्स के बारे में नाज़िल हुई कि अगर इसकी परवरिश में कोई यतीम लड़की हो और वो इसका वली और वारिस भी हो और लड़की इसके माल में भी हिस्सादार हो, यहाँ तक कि खजूर के दरख्त में भी। अब वो शख्स खुद इस लड़की से निकाह करना चाहे क्योंकि उसे ये पसंद नहीं कि किसी दूसरे से उसका निकाह कर दे कि वो इसके इस माल में हिस्सादार बन जाए जिसमें लड़की हिस्सादार थी, इस वजह से इस लड़की का किसी दूसरे शख्स से निकाह न होने दे, तो ऐसे शख्स के बारे में ये आयत नाज़िल हुई थी।